students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your English poem, Want. It's a poem written by Sylvia Stultz. Here we read little bit about a poet, Sylvia Stultz. So students, you can use your prescribed textbook for better understanding. So see on page number 15 down the poem. There you can find about Sylvia Stultz. Lived in a Michigan and her poems echoed her sentiments about nature and the pollution caused by different human activities. Sylvia Stultz's poem mostly deals with the environment. Her sentiments about nature. She mostly writes about how we can conserve our environment, the ways to conserve our environment, and how it's getting polluted how it's getting polluted from this today's world, how we human beings are polluting our environment, how extent it's going. The pollution of environment is going to extinct, and there will be a time where we can't be able to save our environment. So students, in this poem we are going to read how poet telling us that how poet was comparing two times, past and present, how our environment was in past and how our environment is in present. In this poem we are going to read that how our environment was so good, so rich with your resources in the past, and how environment is getting polluted in the present, how we human beings with our activities, with our reckless activities, we polluting our environment. So students, let's begin it. Before reading the poem, we are going to read two lines about the poem. In this poem, the poet talks about how humans are slowly destroying nature and its resources, and why we must wake up before it's too late. In this poem, the poet talks about how humans are slowly destroying nature. In this poem, poet is telling how we humans are slowly destroying the nature, how we humans slowly destroying our nature, how our activities are going to affect the nature and its resources, and the natural resources, how we are disturbing the natural resources, destroying the natural resources, and why we must wake up before it's too late. Poet telling us that we must wake up before it's too late. We must conserve our environment before it's getting too much destroy. We must conserve our environment. We must stop doing the reckless activities that is going to harm our environment. So students, let's begin the poem. The sands of time have re-undid fear. Blue skies on high are no longer clear. Stars were bright whence they came, now dimmed, obscured pollution's haze. In the first line, sands of time means the hourglass. In the past time, people use the primitive method for time, the hourglass. ये स्टैंजा में हमें ये पता चल रहा है कि the sands of time have re-undid fear, blue skies on high no longer clear. सैंड्स ऑफ टाइम मीन्स पहले के समय में पीपल लोग वो जो सैंड का टाइम यूज़ करते थे देखने के लिए, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग मोर डिस्ट्रॉय. सो आकाश में जो ब्लू स्काइज है वो अभी और हमें क्लियर नहीं नज़र आते हैं. दे लुक हेजी टू अस. क्यों? किसके वजह से? पोल्यूशन की वजह से ब्लू स्काई टर्न्स इनटू हेजी. वो हमें धुंधला नज़र आते हैं. यहाँ इस स्टांजा में पोएट पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम को कंपेयर किया है. इसमें बताया है कि पास्ट टाइम में आकाश बहुत ज़्यादा ब्लू और बहुत साफ दिखाई देता था, लेकिन अभी क्या है, पोल्यूशन की वजह से आकाश एकदम हेजी दिखाई देता है. हमें क्लियरली आकाश में क्या है कुछ दिखाई नहीं देता है. स्टार्स वेर ब्राइट व्हेंस दे केम, नाउ डिम्ड, ऑब्स्क्यूर्ड, पोल्यूशन इज. Whence means from where. Stars were bright from where they came. Stars
एकदम ब्राइट दिखते हैं स्टार्स, आकाश में रात होने से एकदम इतने सारे और इतने चमकते थे, इतने ब्राइटली चमकते थे, जो कि अब डिम्ड हो गए, अभी बहुत ज़्यादा डिम दिखते हैं और छुप गए हैं बादल के पीछे। किसकी वजह से? पोल्यूशन की, हेज़ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमें और अभी स्काई में स्टार्स ब्राइटली नहीं नज़र आते, वो हमें धुंधला धुंधला नज़र आते, दे लुक हेजी टू अस, और एकदम डल हो गए हैं और वो आधा से ज़्यादा तो छुप गए हैं पोल्यूशन के पीछे, स्मोक के पीछे। Crystal clear our waters gleamed, fish abundant, rivers steam, ocean floors sandy white, now littered brown pollution plight. Crystal clear our waters gleamed. Crystal clear means एकदम साफ, कांच की तरह साफ हमारे वाटर बॉडीज थे, रिवर्स, लेक्स, जो भी एकदम कांच की तरह साफ थे और ऐसे चमकते थे जैसे मतलब जैसे कोई ग्लिटर्स उस पर पड़ी हो। दे यूज टू ग्लीम्ड, फिश एबंडेंट, रिवर स्टीम, और उस वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे फिश, इतने क्लियर पानी थे कि हमें फ़िश आर पार नज़र आते थे, हमें नीचे का मट्टी नज़र आता था, वाटर लेक्स के जो भी वाटर सैंड बेड रहता है वाटर के नीचे, वो इतना वाटर क्लियर रहता था कि वो नज़र आता है हमें। और रिवर्स स्टीम, और उसमें मछलियाँ हमें फ़्लो होती नज़र देती है, इतनी सारी मछलियाँ उसमें स्विम करती दिखाई देती, कि किसकी वजह से? वाटर्स साफ़ होने की वजह से। और ये कब की बात है? पहले की, पास्ट में ऐसा होता था। ओशन फ्लोज सैंडी वाइट, ओशन फ्लोज हमें एकदम सैंडी वाइट नज़र आती थी, ओशन का अंदर का जो बेड है वो हमें एकदम साफ नज़र आती थी। नाउ लिटर्ड ब्राउन पोल्यूशन प्लाइट, जो कि अब एकदम गंदा, लिटर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे गंदा और ब्राउन, एकदम ब्राउन कलर में हो गए हैं। क्यों? किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। जो पोल्यूशन की वजह से मतलब जो पोल्यूशन किसकी वजह से फैल रहा है? हम ह्यूमन बींग्स के वजह से, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हम जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह यूज़ होता है उसमें जो गंदा पानी सब कहाँ जाता है? वो सब ओशंस या लेक्स या रिवर्स में जाता है। तो इससे क्या होता है? पानी एकदम गंदा होता है, गंदा हो जाता है, और इससे उसकी और हमें वाटर का कलर चेंज कर देता है। नो मोर वी कैन सी द क्रिस्टल क्लियर वाटर, ना ही वो चमकते हैं और ना ही हमें अंदर का कुछ चीज़ दिखाई देता है, और मट्टी भी ब्राउन कलर हो जाता है। किसकी वजह से? पूरा पोल्यूशन की वजह से। Trees towered high above, trunks bearing professed love, birds chirping from sights unseen, gone paper joined pollution steam. In this stanza, poet is telling us about the deforestation. ये stanza में poet हमें ये बता रही है कि पास्ट में जो ट्रीज़ जो लंबे होते थे, टावर की तरह लंबे होते थे, ट्रंक्स उनकी बहुत बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता था नेचर को, बर्ड्स को शेल्टर मिलती थी, और ह्यूमन बींग्स को भी धूप से बचने के लिए छाँव मिलता था। अगर ट्रीज़ होंगे हर जगह तो हमें जैसे धूप में खड़े होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, छाँव हम लोग पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो सकते हैं, उससे फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में हम लोग ट्रीज़ काट रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और हम जिस तेज़ी से रैपिडली जिस तेज़ी से हम लोग ट्रीज़ को काट रहे हैं हमारे मतलब के लिए, इससे क्या हो रहा है? नेचर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, इससे नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है नेचर के लिए। इससे अगर पेड़ काटेंगे तो हमें फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर हम इतनी तेज़ी से, इतनी रैपिडली पेड़ काटने लग जाएंगे, और पेड़ तो ये नहीं कि आज काटे फिर लगा दिए तो कल तक ग्रो हो जाएगा। ट्रीज़ नीड टाइम टू ग्रो, और उन्हें कितने साल लगते हैं ग्रो होने के लिए। तो अगर इतने सालों में सारे ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे, काट कर हम लोग अगर ख़त्म कर देंगे, तो हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, और कितने सारे बर्ड्स
को शेल्टर नहीं मिलेगी, वो बेघर हो जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम होने वाला है। बर्ड्स चिर्पिंग फ्रॉम साइट्स अनसीन, गॉन पेपर जॉइन पोल्यूशन टीम। बर्ड्स चिर्पिंग फ्रॉम साइट्स अनसीन मतलब उतने ऊंचे पेड़ों पर बैठ के जो बर्ड्स जो साइट्स देखते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, और वो सब अगर हम लोग अगर पेड़ काट देंगे तो वो सब अब नहीं रहेगा। और हम लोग पेड़ किस लिए काट रहे हैं, हमें पेपर चाहिए, पेड़ों से पेपर बनती, तो हमें पेपर की ज़रूरत की वजह से हम लोग साल में कितने हज़ारों पेड़ काट देते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन होता है, नेचर को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है नेचर के लिए। ट्रीज आर पार्ट ऑफ नेचर, विदाउट ट्रीज देयर इज़ नो नेचर। सो नेक्स्ट आंसर, one can't blame pollution alone, as they say, you reap what you have sown. So let us plant a better seed, tear out old roots, cultivate weed. One can't blame pollution alone. हम लोग सिर्फ पोल्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते। पोल्यूशन किसके वजह से हो रहा है, पोल्यूशन हम ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। Who are the reason for this pollution? We human beings are the reason for this pollution. इतना पोल्यूशन किसके वजह से, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इतने पोल्यूशन हो रहे हैं। एज दे से यू रीप वॉट यू हैव सोन, और जैसे कहा जाता है हमें वही मिलता है जो हम करते हैं। तो हम अगर अच्छा करेंगे, अभी अगर हम लोग पोल्यूशन कम करने की सोचेंगे, हमारी नेचर को बचाने की सोचेंगे, तो हम अपने फ्यूचर एकदम ब्राइट कर सकते हैं। हम फ्यूचर हमें और फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग कभी प्रेजेंट में वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा दुखी पहुंचा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हमें अनसीजन रेन्स, हर चीज़ एकदम बिना मौसम का हो, मतलब जो जिसके मौसम में वो चीज़ नहीं हो रहा है। हम रेनी सीज़न में रेनी सीज़न नहीं मिल रहा है, रेनी सीजन्स में समर्स कंटिन्यू करते हैं, और जब रेनी सीज़न ना हो तो तभी रेन्स हो जाते हैं। इससे ये सब पोल्यूशन की वजह से बहुत नेचर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हम करेंगे अभी वही हमें फ्यूचर में मिलेगा। अगर अभी हम लोग स्टेप्स लेंगे नेचर को कंजर्व करने का, एनवायरनमेंट को सेफ रखने का, तो हम फ्यूचर में कुछ हम अपने अपकमिंग जनरेशन्स के लिए बचा सकते हैं, उनके लिए कुछ हम लोग बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सारा रिसोर्स ख़त्म कर देंगे तो व्हाट दे विल यूज़, they are not going to get anything. So let us plant a better seed, tear out old roots, cultivate weed. So हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें एक बेटर सीड, मतलब अभी हमें स्टेप्स लेना है एनवायरनमेंट कंजर्व करने का। हमें हर जगह पेड़ को लगाना चाहिए, प्लांट्स घर पे प्लांटेशन करना चाहिए, पेड्स लगाना चाहिए जगह जगह। पेड़ काटने के बजाय हमें हर जगह पेड़ को लगाना चाहिए हर साल। और टीयर आउट ओल्ड रूट्स एंड कल्टिवेट, हमें कल्टिवेट करना चाहिए। अभी से अगर हम लोग स्टेप्स लेंगे एनवायरनमेंट कंजर्व करने का, तो हम फ्यूचर तक कुछ कंजर्व कर सकते हैं, जो कि हमारे अपकमिंग जनरेशन्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्ट व्हाट हैज़ बीन गिवन फॉर फ्री, आवर वाटर, स्काइज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज। For once they are gone, don't you say, consider yourself warned of that fatal day. प्रोटेक्ट वॉट हैज़ गिवन फॉर फ्री, प्रोटेक्ट मतलब पोएट बता रही है कि अभी से प्रोटेक्ट करो। हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज फ्री में मिले हैं, हमें नेचर ने ये सब रिसोर्सेज फ्री में दिए। वाटर, स्काई, वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, दीज आर गिफ्ट फ्रॉम नेचर। ये सब हम ह्यूमन बीइंग्स को नेचर ने गिफ्ट किया है फॉर आवर लिविंग। विदाउट दिस थिंग्स वी कैन नॉट लिव इन दिस यूनिवर्स. So we have to protect all these things for us also, for our upcoming generations also. Protect, पोएट कह रहे हैं कि ये सब अगर आप लोग अभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप लोग को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. For once they are gone, don't you say, consider yourself warned. अगर एक बार ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, तो तभी मत कहिएगा कि हमने आपको वार्न नहीं किया उस प्रलय के लिए. उस फैटल डे मीन्स द एंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द
एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सब मरने लगेंगे। अगर ट्रीज कट जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगी, पीपल धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। तो इसीलिए पोएट कह रही है, अगर आप अभी से ये सब चीज़ों को कंजर्व करने का सोचेंगे, वी हैव टू टेक दिस स्टेप्स टू कंजर्व दिस दिस नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट वी कैन यूज़ इट इन future, and we can use it as long as we are going to live in this nature, in this world. अगर एक बार ये सारा ख़त्म हो जाएगा, या एक बार हमारे हाथों से एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का ये अगर छूट जाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट बैक एट एनी कॉस्ट। हमें ये चीज़, ये एक ऐसा चीज़ है कि हमें मनी से नहीं मिलेगी। वी हैव टू मेक इट with the help of नेचर ही नहीं रहेगी तो ह्यूमन बींग्स कहाँ से जिएंगे। दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय सिल्विया स्टल्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पोएम्स में बहुत ज़्यादा नेचर को रिलेटेड पोएम्स लिखती है, और उसमें बताती है कि किस एक्सटेंट तक हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनकी एकदम मतलब उनकी सेंटिमेंट्स नज़र आती है उनकी पोएम्स में, हाउ शी इज़ वरीड फॉर नेचर, कैसे हम ह्यूमन बींग्स नेचर को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, कैसे हम इस नेचर को बचा सकते हैं, वो सब ये अपनी पोएम्स में बताती है ज़्यादातर। सो स्टूडेंट्स, here is the lesson. Here we complete this poem. I hope you will read this poem thoroughly. Read it. It's a very nice poem, and it's going to help us for thinking, for planning a better future. How we are going to make a future. Future means not that how we are going to live. अगर नेचर अगर नहीं रहेगा तो हमारा क्या फ्यूचर रहेगा। From plants only we get everything. We survive from the plants, we get air from plants, we get food from plants. So अगर ये सब अगर नहीं रहेंगे, वाइल्ड लाइफ, वाटर बॉडीज, स्काइज, ट्रीज, अगर ये सब ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन बींग्स कहाँ से रहेंगे। सो hope you will read this poem thoroughly, revise it, learn it, and if you have any doubt regarding this poem, you can ask me. I am going to clear it out in the next video, and in the next video we are going to discuss the question and answers of this poem.